Okay, so in last class what we discussed? In last class we discussed about the consumer buying decision process. मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, सब लोग स्क्रीन पे देखिएगा. Okay. Everyone on screen. So we already discussed about consumer buying decision process, like how the consumer are purchasing or using the service, how they are buying the service, how they are taking service. So this is the stages. These are the 3 stages. The pre-purchase stage, I already told you. Basically there is a one more एक consumer buying decision process होता है जो normal आप लोगों को पता होगा. जैसे first one is need recognition, the second one is information search, then evaluation of alternative, then purchase and post purchase. तो ये सारी चीजें याद होंगी सबको. तो यहाँ पर इन्हीं को कहीं ना कहीं 3 स्टेज में बांटा गया है. So the pre-purchase stage is something where the consumer is going to evaluate, the consumer is going to identify, the consumer want information about the basically services. Means यहाँ पर क्या situation है? यहाँ पर basically जो consumer है वो क्या करेगा? The consumer is going to basically getting information about the various kinds of product. यानी यहाँ पर अलग अलग टाइप के बोल सकते हैं ना, अलग अलग सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश कौन करेगा? आपका कंज्यूमर. ठीक है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखेगा, लेकिन द वे ही सर्चिंग दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट हाउ मच अमाउंट एंड हाउ मच रिस्क इज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर सर्विस. लाइक इफ देयर इज समथिंग वेयर देयर इज लॉट ऑफ, मतलब बोल सकते हैं ना कि एक्सट्रीम रिस्क है किसी कुछ चीजों में, तो ऐसे केस में ही और शी इज गोइंग टू इवैल्यूएट इट मोर, दे आर गोइंग टू सर्च अबाउट इट मोर. ठीक है, सो इन शॉर्ट when the risk is associated with the service is high, then in that case they are going to evaluate it more. ठीक है, मतलब सर्च ज्यादा करेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करने की बोल सकते हैं ना प्रोसेस उनका ज्यादा रहे. एंड वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड अबाउट दीज काइंड ऑफ रिस्क. समझ में आ गया था ये जो टाइप्स ऑफ रिस्क बताया था मैंने, टाइप्स ऑफ रिस्क जो करवाया था, फंक्शनल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क एंड ऑल. क्लियर है सबको? एवरीवन, एवरीवन? यस मैम. बाकी बच्चे? Okay, so the first stage is the pre-purchase stage. Here we are going to identify the risk as well as we are going to acquire the knowledge, right? If we are taking and if we are spending lot of amount on the service, we will analyze it. So मतलब बहुत ज़्यादा analyze करेंगे. आज भी अगर हम example में कोई product को ले, तो if we are going to purchase a salt and if we are going to purchase a laptop, we will definitely going to search a lot about the laptop because we are investing more than 30 or 35,000. So in that case, the more risk is there because there is a, what kind of risk is there? That is a monetary risk. Monetary risk या financial risk is attached with the purchase. So in that case, in that situation, definitely the consumer is going to evaluate a lot. So here the term is like in this, ये all these three, यानी कि जो आपने normal consumer buying decision process पढ़ा था, उसमें जो आगे ऊपर जो 3 आपके stage थे, need recognition, information search and evaluation. Need recognition, information search and evaluation of alternatives, ये तीनों के तीनों जो है, यानी कि ए, बी और सी तीनों स्टेज जो है सर्विस सेक्टर में प्री परचेज स्टेज में आता है. यानी कि जो नॉर्मल आपके जो नॉर्मल था ना ये वाला, नीड रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, परचेज एंड पोस्ट परचेज, तो ये जो तीनों है ये इस बार में मतलब सर्विस वाले में ये सारे प्री परचेज स्टेज में आते हैं. प्री परचेज स्टेज क्लियर हो गई बात? ये तीनों समझ में आया सबको? एवरीवन? यस मैम. नेक्स्ट वन. अब इंफॉर्मेशन सर्च में आप अपनी नीड को डिफाइन कीजिएगा.
जैसे कि मान लीजिए कि इफ समवन हैव टू डू ऑफिस वर्क या बहुत ज्यादा टेक्निकल जो काम करेंगे, उनके नीड भी मतलब जो कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, प्रोडक्ट की नीड उसी तरीके के होंगे, ठीक है। अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, मैंने जो लास्ट टाइम एग्जांपल दिया तो वही लेके चलते हैं। तो उस केस में यू आर गोइंग टू डिफाइन द नीड्स कि आपकी नीड क्या है, कैसा कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, व्हाट इज योर बेसिकली आपका बेसिकली इंटरेस्ट एरिया क्या है। आप सॉल्यूशन के लिए यानी कि यू आर गोइंग टू सी द ऑल द अल्टरनेटिव्स प्रेजेंट, यानी कि मान लीजिए इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन पटना, देन यू आर गोइंग टू इवैल्यूएट ईच एंड एवरी कॉलेजेस, राइट। आफ्टर दैट मतलब वही कि फिर मतलब एक्सप्लोर कीजिएगा सॉल्यूशन, कॉलेजेस देखिएगा, कॉलेजेस को कंपेयर कीजिएगा। यहाँ पर इवैल्यूएशन का तरीका क्या होगा, समथिंग विच इज बोल सकते हैं ना कि इंफॉर्मेशन तो ले लिया, बट डीपली हाउ वी कैन एनालाइज द थिंग्स। So here we are going to see the physical evidences which are present for the services, यानी कौन कौन सी फिजिकल एविडेंस प्रेजेंट है, जैसे उसका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, एडवर्टीजमेंट देख लेंगे, ब्राउचर्स देख लेंगे, वेबसाइट्स चेक कर लेंगे। उसके अलावा वी कैन ऑल्सो गोइंग टू हेल्प, वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेक हेल्प फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज द फ्रेंड्स, फैमिलीज, कस्टमर्स, इन सबको बेसिकली इन सबसे हम कंसल्ट करेंगे। एंड अगर पॉसिबल होगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे कॉलेज में भी कितने सारे कंसल्टेंट है फॉर द एडमिशन प्रोसीजर्स, ठीक है। सो अगर पॉसिबल होगा तो वी आर ऑल्सो गोइंग टू बेसिकली कंसल्ट और इंटरेक्ट करेंगे पर्सन से जो सर्विस प्रोवाइडर है या कंसल्टेंट है, ठीक है। सो इन दिस ऑल थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन द प्री परचेज स्टेज। ऑलरेडी आई elaborated, yes अक्षय। मैम फीडबैक से भी तो देख सकते हैं ना। फीडबैक देखो, अगर आप किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाओगे तो ही इज नॉट गोइंग टू यूज द फीडबैक। द फीडबैक इज द लास्ट स्टेज ऑफ एनी मतलब कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस में सबसे लास्ट में होता है फीडबैक। लेकिन कॉलेज के बारे में तो आपको कोई भी क्या फीडबैक देगा, दे आर गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशन लाइक व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स यू विल गेट। लाइक सर्विस प्रोवाइडर ऑलवेज टेल यू अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द सर्विसेज, right? The feedback is totally dependent on the consumer, and when you are taking the service, once you will experience that service, then after that you are going to give the feedback, right? Akshay, ओके मैम। next one, the next one is service encounter stage, जो मिडल में जो स्टेज आएगा। यहाँ पर जो सप्लायर जो भी सप्लायर को आपने चूज कर लिया इवैल्यूएशन करने के बाद, अब आप उनसे सर्विस मतलब इनिशिएट कीजिएगा, यानी इफ यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन नाउ, ठीक है। सो यहाँ पर अब आप एडमिशन लेने के प्रोसीजर्स को समझोगे, लाइक फॉर्म फिल करना, ठीक है, फॉर्म फिल करोगे, उसके अलावा फिर फी वगैरह सबमिट करना, ये सारी चीजें मतलब, एंड जो पर्सन जो सर्विस प्रोवाइडर है कॉलेज जाके देखोगे, विजिट करोगे। So all these things you are going to do in the service encounter stage as well. Yeah, here you are going to ask for the service from the service provider. यानी यहाँ पर आप एडमिशन लेने के लिए पूछोगे, मतलब you are going to ask the procedure about it, right? Then the service will be delivered. Once the service will be delivered, तो मतलब in short what we can say that in the service encounter stage you are going to utilize that service, you are going to purchase that service, right? Once the service is delivered, yani once you are started taking the service, after that you are going to मतलब फिर post purchase stage आएगा, जहां पर आप evaluate करोगे about the service performance, like what you expected and what you are getting. Here you are going to evaluate it, and now you are going to give the feedback to the basically service provider. What, and then you are going to show, like if you are satisfied, then your future intention is clear that for again for taking the service you are going to visit that place, but that does not happen in every service, ठीक है। जैसे अगर कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो ऑब्वियसली 3 साल 4 साल 5 साल आपने जब भी लिया है, यू हैव टू फुलफिल दैट टाइम, right? If you are satisfied, if you are not satisfied, that is the different condition कि अगर आप satisfied होते हैं, अगर normal services ले रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, किसी कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, किसी से TDS फाइल करवा, किसी से ITR फाइल करवा रहे हो, तो वो अगर उन्होंने आप satisfied उनके सर्विस से, you will visit again. So that is the intention, like you are going to take that service again or not. So that will be happen in the post purchase stage. तो ये तो डायग्राम के हिसाब से चीजें थी। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, PSP ऐसे याद रहेगा, परचेज, प्री परचेज, सर्विस, पोस्ट परचेज। बाकी जो कंज्यूमर बैंक डिसीजन प्रोसेस इतने दिनों से पढ़ते आए हो, बस उसका जो आगे का 3 स्टेज है वो
वो जो 3 है वो प्री परचेज में आ जाएगा, जो आपका परचेज स्टेज है वो सर्विस एनकाउंटर में आ जाएगा, जो पोस्ट परचेज है वो पोस्ट परचेज स्टेज में आ जाएगा। तो उसी 5 के थ्रू ये सारा याद कर सकते हो आप। क्लियर हो गया सबको? एवरीवन? Yes, नेक्स्ट नाउ टाइप्स ऑफ रिस्क में किसी को कोई डाउट है? एनीवन? फंक्शनल रिस्क का एग्जांपल देके बताइए तो। क्या बोल रहे हो कोमल? फंक्शनल रिस्क का Functional risk is something where the basically risk is dependent upon the performance or outcome. Like if you are doing dance, right? अगर आप डांस करते हो, ठीक है, so in that case dancing is your performance, that is something outcome, ठीक है। अगर आप किसी के यहाँ डांस सीख रहे हो, है ना, तो ऐसे केस में व्हाट यू विल एक्सपेक्ट, लाइक आफ्टर डांस सीखने के बाद डांस इंडिया डांस में जा पाएंगे कि नहीं, दिस काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन द पर्सन और कंज्यूमर है, ठीक है। समथिंग विच इज रिलेटेड विद द स्किल, ठीक है, तो वहां पर आ जाता है आपका फंक्शनल रिस्क। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि विल दिस ट्रेनिंग गिव मी द स्किल आई नीड टू गेट अ बेटर जॉब, लाइक फॉर इस जॉब को लेने के लिए जो मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए हेल्पफुल होगा उस जॉब को पाने के लिए। So somehow you are basically grabbing the skill, या you are taking the skill by the training procedure. So function के हिसाब से, यानी कि जो आप काम कर रहे हो, जो आप वर्क कर रहे हो, उसके हिसाब से अगर आप जो है मतलब फंक्शनल रिस्क, यानी कि अगर हम डांसिंग सीखने जाएंगे तो वो जो टीचर होगा मुझे डांस सही सिखाएंगे कि नहीं, मैं अगर कुकिंग सीखने जाऊंगा तो मुझे वो कुकिंग ठीक से सिखाएंगे नहीं, समथिंग लाइक दिस, जो फंक्शन से रिलेटेड होगा। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब ये होता है कि जहां पैसे से रिलेटेड हो, यानी कि पैसे का लॉस। मान लो कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया, अब मैंने कोई शेयर लिया और मेरा शेयर डूब तो नहीं जाएगा, दिस काइंड ऑफ थिंकिंग, दिस इज रिलेटेड विद द फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि आपका पैसे के अलावा कुछ जाने का कोई स्कोप यहाँ नहीं है। 5,000 का शेयर लोगे तो वही 5,000 रुपए के डूबने का ही चांस है ना, आ रही बात समझ में? बाकी वहां पर कंपनी में क्या फंक्शन चल रहा है, कंपनी का जो वो शेयर है वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, दैट इज नॉट इन आवर हैंड, वी कैन नॉट कंट्रोल इट बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड बाय द इकोनॉमी, राइट। सो एक इकोनॉमिकल जो साइकिल चल रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम जो पैसे लगा रहे हैं उस शेयर को लेने में, कहीं ना कहीं रिस्क उससे एसोसिएटेड है। Temporal risk is something which is related with the temporary risk. It is related with the instant risk. यानी कि अगर हम कहीं, जैसे मान लो मैंने आधार कार्ड ऑफिस में गई and I was standing there for 5 hours. So that was the temporal risk because I have no idea that if I'll visit the place, I have to wait there. So temporal risk is something where we have to basically that happened instant and we have no idea that this will going to happen. अब जैसे कई बार होता है संडे को बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद होते हैं, मंडे को एकदम से पहुंचोगे भीड़ देखोगे, टेम्पोरल रिस्क, वो उस समय का रिस्क ये है कि वहां पर गए और वहां का उस समय बर्बाद हो गया, कंसिड डिले हो जाना, वेस्ट होना टाइम, कई बार बैंक जाना और बीच में ही लंच आ जाना, होता है ना ये चीज, लंच बीच में लंच हो गया, गए और पहुंचे और लंच हो गया, आपके टाइम पे क्लोज हो गया काउंटर, सो दैट इज द टेम्पोरल रिस्क। क्लियर होगी बात? Yes, ma'am. Next one is physical risk related with whatever service you are taking that is going to harm you, ठीक है, that is going to damage, it may be possible that is going to damage our body, ठीक है, यानी हमारे मुझे लॉस हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने स्काई डाइविंग करना, फिर बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे कि झूले में झूलना, these all things are related with the physical risk। झूले में झूल रहे हैं, ऊपर से ऐसा सोचना मत, मैं ऐसे बता रही हूँ, डोंट टेक इट इमोशनली एंड डोंट टेक इट पर्सनली, आई एम जस्ट नॉर्मली सेइंग दैट समटाइम इट हैपेंस दैट हमने जब झूला में झूलना है और सोच रहे हैं कहीं, ऑब्वियसली उसके साथ रिस्क क्या एसोसिएटेड है, उस झूले के में 50 रुपए देकर जो हम चढ़े हैं झूलने के लिए, उसमें क्या रिस्क है, ऊपर से गिर सकते हैं ना, यही रिस्क है ना, 50 रुपए का रिस्क नहीं है, ऊपर से गिरने का रिस्क है। क्लियर हो गई बात? इसको क्या बोलेंगे? फिजिकल रिस्क। साइकोलॉजिकल रिस्क इज समथिंग, हाँ यहाँ फिजिकल रिस्क पर्सनल इंजरी का चांसेस है, साइकोलॉजिकल रिस्क डर, बहुत ज्यादा इमोशन, डर, पर्सनल फियर्स। सोशल रिस्क रिलेटेड विद द सोसाइटी, that if I am going to take the service, that what
our family is going to think. If I'll purchase Alto, what my family will think? That I am not able to afford the luxurious car. मतलब ऐसा नहीं जिसके पास अल्टो है उसको मैं कह रही हूँ, दिस इज द नॉर्मल थिंग. क्लियर हो गई ना बात? तो मैंने पहले ही बताया कि एग्जाम्पल्स जो भी हैं डोंट टेक इट पर्सनली एंड इमोशनल. ठीक है, ये सब समझाने का तरीका है. मैं मार्केटिंग की टीचर हूँ, मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगी. सो यहाँ पर this is the social risk, like how the other people is going to react if they will know that I purchased this product, I took this. Like if they hear कि मुझे अपने दांत दिखवाने के लिए जाना पड़ गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल, what they will think, है ना? गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई, प्राइवेट भी तो जा सकती. दिस काइंड ऑफ रिस्क इज रिलेटेड विद द सोशल रिस्क. ठीक है, क्लियर हो गया सबको? एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. आगे. Sensory risk is something that is related with the unwanted impacts of the five senses. What are our five senses? Five senses क्या होता है हमारे? Eye, tongue, पहले तुम लोग साइंस की किताब पढ़ो सब. Eyes, nose, tongue, ear and skin. These are five senses. यही है ना 5 senses हमारे? yes, ma'am. तो बेसिकली जो आपकी सेंसरी रिस्क इज समथिंग दैट इज रिलेटेड विद द इम्पैक्ट. लाइक बोल सकते हैं ना कि जो आपको मतलब अब जैसे कुछ होता है ना कि कुछ व्यू देख रहे हैं या फिर जो चीज मतलब हमारी आंखों को ठीक लगे, जैसे कुछ खाने के लिए मंगवाया, टेस्ट स्मेल ही बहुत खराब सा आ रहा खाने का. ठीक है, कोई ऐसी चीज लाइक जैसे कि अगर हम किसी होटल में जा रहे हैं, बेड इज नॉट कंफर्टेबल, इट इज गिविंग मतलब ऑब्वियसली दैट इज पेनफुल. सो मतलब वो बहुत अजीब सा मतलब है. ये सब चीजें जो समथिंग विच इज रिलेटेड विद द फाइव सेंसेस. हाँ, जैसे नॉइज, अगर आसपास के गेस्ट बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, सो दीज ऑल थिंग्स आर समथिंग विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट इन आर, जो हमारे बोल सकते हैं हमारे ऊपर इम्पैक्ट बनाएगा, मतलब ये उस तरीके के रिस्क. चलिए, will my room smell of the stale cigarette smoke? Will the coffee at breakfast taste disgusting? All these things are comes under the sensory risk. Now the second stage is service encounter stage. Here, after deciding the purchase of specific service or customer experience, उसके बाद क्या होगा? एक मिनट. Okay, so the service encounter stage is something which is related with the, here we are going to finally purchase the product. यानी प्रोडक्ट को यानी सर्विस को हम लेना, यहाँ पर सर्विस को हम लेंगे, यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, कंज्यूम करेंगे. सो आफ्टर डिसाइडिंग टू परचेज, मतलब परचेज करना है ये स्पेसिफिक सर्विस. अब कस्टमर जो है वो अपने जितना भी उसने चूज किया हो, मान लीजिए 4-5 उसने कॉलेज को ऐसे शॉर्टलिस्ट कर लिया हो कि भाई इनमें से हम किसी से भी मतलब किसी में भी एडमिशन ले लेंगे, ये 4-5 बेस्ट है. अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अपने जो भी होंगे 1 और मोर कॉन्टैक्ट्स जो भी होंगे सर्विस प्रोवाइडर के, सबसे आप बात करोगे. सर्विस एनकाउंटर स्टेज तब शुरू होगा जब हम यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट करेंगे. एप्लीकेशन सबमिशन इज समथिंग दैट इज रिलेटेड, जब हम कहीं मान लो कि हमें कोई सर्विस लेना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो एप्लीकेशन सबमिट कर दिया. ठीक है, उसके बाद फिर रिक्वेस्टिंग और रिजर्वेशन, उसके बाद फिर प्लेसिंग एन ऑर्डर मतलब ऑर्डर देना, फिर कांटेक्ट करेंगे कस्टमर्स, और मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एज वेल. देखो, इंफॉर्मेशन को सर्च करोगे कंप्यूटर पे, दैट विल गो टू द प्री परचेज स्टेज. बट बाय basically using the computer you fill the form, that will comes under the service encounter stage. ठीक है, जैसे अपने रेस्टोरेंट में जाना है उससे पहले आपने पूरा सर्च किया, that will come under the pre purchase stage. After that when the 4 or 5 restaurant you decided that इन 4 और 5 में से जा सकते हैं, उसके बाद फिर टाइमिंग और ये जो भी देखना था, मेन्यू जो भी देखना था, उस हिसाब से आपने एनालाइज कर लिया कि फाइनली ये वाले रेस्टोरेंट में जाएंगे. सो दिस विल कम्स अंडर द सर्विस एनकाउंटर स्टेज. यहाँ पर सर्विस इनकाउंटर स्टेज कब होगा, जब बेसिकली एक सर्विस एनवायरनमेंट या फिर सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस टेकर जो होंगे वो दोनों आमने सामने आएंगे, या फिर वो फोन की हेल्प से, जैसे अभी कोविड के टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है ना, सारा प्रोसीजर ऑनलाइन, एडमिशन लेने का भी प्रोसीजर ऑनलाइन. सो वाया यूजिंग द टेक्नोलॉजी एज वेल एज बाय द इंटरेक्शन, द सर्विस एनकाउंटर इज गोइंग टू बी हैपनिंग. सर्विस एनकाउंटर जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर एक इन्वायरमेंट में मिले. ठीक है,
सो जो सर्विस इन्वायरमेंट होगा इसमें सारी टैंजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह भी आएंगी, और साथ साथ में आपकी बिल्डिंग, जैसे आपके कॉलेज का बिल्डिंग कैसा, एक्सटीरियर कैसा, फर्नीचर्स, इक्विपमेंट, लाइब्रेरी, लैब, सब कुछ आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है। उसके अलावा अपीयरेंस क्या है, कंसल्टेंट का बिहेवियर क्या है, सारी चीजें यू आर गोइंग टू फेस इन द सर्विस एनकाउंटर स्टेज, राइट। एंड उसके बाद जब फिर यहाँ पर आप तो किससे मिलोगे, सर्विस पर्सनल से, जो पर्सन जो आपको सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। मतलब हाई कॉन्टैक्ट सर्विस इनकाउंटर्स में सर्विस पर्सनल का सबसे बड़ा रोल होता है। सर्विस पर्सनल का सबसे ज्यादा रोल किसमें होता है, जहां हाई कॉन्टैक्ट सर्विसेज हो, ठीक है, जहां पर आप डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं कस्टमर से। यहाँ पर सर्विस डिलीवर जो होगा, मतलब कुछ और भी चीजें आएंगी, जैसे कुछ लो कॉन्टैक्ट में क्या आएगा, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ठीक है, लेकिन आपके हाई कॉन्टैक्ट में फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड ऑल। तो यहाँ पर बेसिकली जो सर्विस एनकाउंटर में जो एम्प्लॉइज होगा, यूजुअली वो लर्न स्किल्ड होगा, पर्सनालिटी मतलब पर्सनालिटी ठीक होगा, मतलब एक होता है राइट टाइप ऑफ पर्सनालिटी who is suitable for elaborating the facts. Like if someone who is basically elaborating you about the college, for example, I'm not talking about the basically positions, and I'm not talking about designation, but I'm normally saying that it might be possible कि अगर आपको कॉलेज का गार्ड ये बताना शुरू कर दे about the college criteria and all, it might be possible that that is not their work, as well as that is not the suitable, he is not the suitable person who is going to tell you about it. So in short, the service personnel have to be skilled, knowledgeable and expertise in that area, ठीक है, मतलब एडमिशन का जो काम करा रहा है एडमिशन ही देखे। सो दिस सर्विस पर्सनल का सबसे बड़ा रोल है सर्विस एनकाउंटर में। उसके अलावा आपको सपोर्ट सर्विसेज वगैरह भी, इक्विपमेंट्स वगैरह भी दोगे सर्विस एनकाउंटर स्टेज में। जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन लिया तो यू विल गेट द ड्रेस, यू विल गेट द बोल सकते हैं ना बुक्स वगैरह, यू विल गेट राइट आईडी, यू विल गेट, सो सपोर्ट सर्विसेज विल आल्सो बी विद दैट सर्विस के साथ सपोर्ट सर्विस विल बी आल्सो प्रोवाइड, राइट। नेक्स्ट इज पोस्ट परचेज। नाउ यहाँ पर यू परचेज द सर्विस, आपने सर्विस को खरीद लिया, ले लिया। अब यहाँ पर क्या होगा आपका पोस्ट परचेज स्टेज। नाउ यू आर एक्सपीरियंसिंग द सर्विस, ठीक है। सो हेयर इन द पोस्ट परचेज स्टेज द customers continue a process, then begin in the service encounter stage, evaluating service की quality को evaluate करेगा। Now you are going to face the real environment there कि कॉलेज में अब आप जाना शुरू हो गए। Now you are going to understand what is the service quality, what is the teaching quality, what are the basically facilities। आप उसी क्वालिटी को देखते हुए you are going to satisfied or dissatisfied, मतलब your experience will be like that if you will found that yeah definitely the service quality is very good, then definitely you will be satisfied, but if not then you will be dissatisfied. So post purchase stage is something that is known as the outcome of the service, मतलब सर्विस डिलीवरी, यानी जो सर्विस डिलीवर किया गया, सर्विस जो कंज्यूम किया गया, उसका वो आउटकम क्या है, पोस्ट परचेज stage. Here the loyalty will be totally dependent upon the satisfaction or dissatisfaction. जो आपका सेटिस्फैक्शन अगर है तो आप लॉयल रहिएगा, डिससेटिस्फैक्शन है तो यू आर नॉट गोइंग टू बी लॉयल दैट केस। लेकिन जो कॉलेज एडमिशन, स्कूल एडमिशन इज समथिंग वेयर वी हैव टू टेक द रेगुलर सर्विस, क्लियर है ना। But in the case of resto, when you visit and if you will find that no, this place is not good or something, if you will find anything not as such better, then definitely you are not going to come there. So in short, the post purchase stage is something that is known as the outcome, your intention, the future intention that you are going to take the service from this place or not. If their expectation जो है, अगर उसका मतलब प्रॉपर्ली जो भी आपने एक्सपेक्ट किया वो फुलफिल हो जाता है, और हो सकता है कि बहुत उससे भी ज्यादा बेटर अगर आपको मिले, सो इन दैट केस डेफिनेटली यू विल बिकम मोर सेटिस्फाइड, ठीक है। और एक चीज और भी है, द प्राइस एंड क्वालिटी रिलेशनशिप शुड बी एक्सेप्टेबल। प्राइस एंड क्वालिटी रिलेशनशिप शुड बी एक्सेप्टेबल, मतलब जितना प्राइस पे किया उतना ही सर्विस क्वालिटी भी बेटर होना चाहिए। क्लियर हो गई बातें? तो दिस इज द consumer buying decision process. Anyone have any doubt in this topic? Anyone have any doubt in this topic? Learn हो गया ना सबको consumer buying decision process?
Let's Yes. move toward the component of the services. What are the components of the services? सर्विस के क्या कंपोनेंट शुभांगी क्लास में हुआ है ना ये? Yes, ma'am. करवाया है ना मैंने, मुझे याद है, फिर मैं चलिए को बता देती हूँ. Service delivery, service environment, service product and physical product. These four are basically component of services. ठीक है, these four are the component of services. अच्छा, तुम लोग को जो मैंने levels of service लिखाया था, उस level of service में कर लेना level of service product, level of service product, level of service product. ठीक है, level of services नहीं है, level of service product है. ठीक है, और कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें क्या लिखना है? इसमें लिखना है टीपीसी के बारे में, टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट. और टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट से पहले कुछ और भी कंसेप्ट है, वो भी किताब में, वो दोनों मैं अभी बता रही हूँ जस्ट. ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं कंपोनेंट ऑफ अ सर्विसेज, उसके बाद उस क्वेश्चन को करेंगे फिर से. चलिए, जो 4 कंपोनेंट है सर्विस प्रोडक्ट का लिखिए. सबसे पहले लिखिए सर्विस डिलीवरी, नहीं सबसे पहले लिखिए फिजिकल प्रोडक्ट, उसके बाद बताते हैं. इसका मैंने आप लोगों को शायद डायग्राम भी बनवाया था, ऐसे था ये. ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट बीच में लिख लेना. और यहां लिख लेना सर्विस डिलीवरी, सर्विस प्रोडक्ट, सर्विस इन्वायरमेंट. ठीक है, तो सबसे पहले फिजिकल प्रोडक्ट से शुरू करते हैं. फिजिकल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा होगा आप लोगों को. व्हाट इज फिजिकल प्रोडक्ट? Physical product is whatever the organization is transferred to the customer and that can be touched. That is known as a physical product कह सकते हैं. जैसे हाउस हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, बुक्स, होटल, सोप, शैम्पू, फूड, whatever is additional or whatever the supporting product is provided with the services, that is known as the physical product. तो फिजिकल प्रोडक्ट आपके क्या होंगे? बेसिकली फिजिकल प्रोडक्ट वही होगा जो सर्विस के साथ आपको कुछ एडिशनल, और कई बार तो पूरा, जैसे आपका एसी, आपका लैपटॉप, आपका बेंचेस, फिर आपके बुक्स, ये सारे क्या होंगे? फिजिकल प्रोडक्ट होंगे. ठीक है, सो फिजिकल प्रोडक्ट मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रोवाइड करे, जो फिजिकली दिखे, विजिबल हो, टच कर सके, दैट इज फिजिकल प्रोडक्ट. एंड एज विद द रेस्ट ऑफ सर्विस ऑफरिंग, द प्रोडक्ट डिजाइन जो भी होना चाहिए, दैट शुड बी द कस्टमर ओरिएंटेड, वेल डेवलप्ड मेथड होना चाहिए, प्रोडक्ट प्रॉपर्ली डिजाइन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर्स. एंड ये जो आपका सर्विस प्रोडक्ट, जो आपका ये फिजिकल प्रोडक्ट होगा, सबको आई गेस क्लियर हो गया होगा, इसको ज्यादा इलैबोरेट करने की जरूरत तो नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट टॉपिक, द सर्विस प्रोडक्ट. सर्विस प्रोडक्ट, इसमें लिखना चाहते हो फिजिकल प्रोडक्ट में कुछ भी? ठीक है, जो टैंजिबल हो, फिजिकल हो, रियल हो. क्लियर हो गई ना बात? तो ये सारे जैसे हाउसेस, ऑटोमोबाइल्स, ये सारी की सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएगा फिजिकल प्रोडक्ट में. अब सर्विस प्रोडक्ट क्या है? तो सर्विस प्रोडक्ट जो है बेसिकली, सर्विस प्रोडक्ट कह सकते हैं दैट इज द कोर परफॉर्मेंस, दैट इज द कोर परफॉर्मेंस purchased by the customer, the flow of events. इसको लिखना चाहते हो? लिख लो थोड़ा सा. I think यहाँ लिखा हुआ आपकी किताब में है given. The service product is the core performance purchased by the customers, the flow of event designed to provided a desired outcome. ठीक है, इसको हम कैसे ले सकते हैं? देखो, जैसे एसी खरीदने के लिए गए, एसी खरीदने के लिए जाते हैं, कहीं भी गए हम लोग, मान लिया आदित्य विजन में गए एग्जाम्पल के लिए, तो वहां पर प्रोडक्ट को हम खरीदे चाहे ना खरीदे, वी आर एबल टू टच इट, राइट, वी आर एबल टू सी, हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं. ठीक है, भले उसको हम खरीदे ना खरीदे, द कस्टमर एग्जीक्यूटिव इज गोइंग टू एलैबोरेट अबाउट दैट प्रोडक्ट, राइट. So here the service product is something related with the core performance
और या बोल सकते हैं कि एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, जहां पर कोई भी पर्सन अगर कोई प्रोडक्ट को खरीदने आता है तो उसके साथ हम उसको क्या एडिशनल सर्विस देते हैं. Like if I am going to purchase this laptop and I have no idea about the processor, who is going to elaborate it? Customer executive, because that person is the expertise and he is going to tell me about everything. Even you all have an idea about it, I think. They are also going to tell you about the some negative consequences about the product as well. So they are as such honest. So in short, the service product kya hai? That is the core performance purchased by the customer. Core performance is something that is related that when we are going to purchase the product, जब हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उसके साथ हमें क्या एडिशनल सर्विसेज मिलता है. समझ में आई बात? इसमें क्या होंगे, फ्लो ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए शॉप में गए, प्रोडक्ट को देखा, कस्टमर एग्जीक्यूटिव आया, हेल्प किया, समथिंग लाइक दिस. ठीक है. इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस. ये एक्चुअली आपका सर्विस प्रोडक्ट नाम सुन के लग रहा होगा प्रोडक्ट है ना, लेकिन ये एक्चुअली आपका एक एक्सपीरियंस है. जब आप प्रोडक्ट को खरीदने जाते हो तो आपका क्या मतलब, आपको क्या सुविधा, क्या फैसिलिटी मिलती है. जैसे मैं कार अगर खरीदने जाऊंगी तो कार तो मैं खरीदूंगी, आई नो, लेकिन व्हाट आई विल एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर शोरूम, दैट इज सर्विस प्रोडक्ट. ठीक है. It includes the interaction of the firms with the firm's personal. It is basically typically related with the interaction with consumer. का किससे interaction हो रहा है? firm के personal से. Basically वो जो person, जो customer executive है, उससे जो interaction हो रहा है, उससे जो experience gain किया हुआ, उससे जो मैंने basically उसने जो मुझे knowledge दिया, उसने जो मुझे information दिया about the product, that is known as the service product. Example में देखो, कोई कार डीलर अगर शोरूम मतलब एट द सम कार डीलर शोरूम में अगर हम जाते हैं, द कस्टमर्स आर अलाउड टू लुक एट द कार. मतलब कस्टमर को अलाउ है कार देखने का इन द शोरूम. इवन वो लोग को तो ड्राइव भी, ट्रायल के लिए ड्राइव भी मिलता है ना. बट द सेल रिप्रेजेंटेटिव व्हाट ही विल डू, ही इज इवन गोइंग टू गिव यू द ट्रायल ऑफ दैट, ही इज गोइंग टू टेल यू अप्रोच फॉर परचेजिंग दैट. सो यहाँ पर जो शॉपर्स जो होंगे, यानी जो पर्सनल है या फिर जो सेल्स पर्सन है, ही इज द, वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोडक्ट के बारे में इलैबोरेट करेंगे, समझाएंगे, अप्रोच करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे. ठीक है. आपकी एंजाइटी को, आपकी रिस्क को, आपकी कॉन्फिडेंस, मतलब आपकी एंजाइटी को रिड्यूस करेंगे, रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, आपकी कॉन्फिडेंस को, आपको एश्योरेंस देंगे. ठीक है. और कस्टमर जो है वो बेसिकली इवन वो निगोशिएट भी करने के लिए रेडी होते हैं. कई बार वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट वगैरह भी दे देते हैं आपको कि सर आपको हम 2000 रुपए एक्स्ट्रा डिस्काउंट करवा देंगे. सो यहाँ पर, और इसके अलावा और भी चीजें हैं. ठीक है. जैसे कि आपका गारंटीज वारंटीज देना. ठीक है. तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दैट विल कम्स अंडर द सर्विस प्रोडक्ट. आगे बात समझ में, सर्विस प्रोडक्ट क्या होता है? Yes, ma'am. फिजिकल प्रोडक्ट समझ में आ गया? Yes. ठीक है. तो सर्विस प्रोडक्ट एंड फिजिकल प्रोडक्ट क्लियर. ओके. नेक्स्ट सूरज. यस, व्हाट हैपेंस सूरज? मैम सर्विस प्रोडक्ट, जब आप कभी कोई सर्विस खरीद, जब आप कोई सर्विस लेते हो, ठीक है, एनपीएफ में जब जाएंगे तो वैसे उस केस में मैम फिजिकल प्रोडक्ट का मतलब है दैट इज द सपोर्टिव कुछ प्रोडक्ट. जैसे हम मान लीजिए कि सर्विस, अगर आप किसी होटल में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपको वहां पर शैम्पू मिलेगा, कॉम्ब मिलेगा. कॉलेज में एडमिशन लिया तो बुक्स मिले, यूनिफॉर्म मिला, लैपटॉप भी बहुत सारे कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं. सो इन शॉर्ट दैट इज नोन एज फिजिकल प्रोडक्ट. अगर हम सर्विस के, फिजिकल प्रोडक्ट तो नॉर्मल प्रोडक्ट होता है, आपका मोबाइल, आपका ईयरफोन, एवरीथिंग इज अ फिजिकल प्रोडक्ट. बट इन द टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सर्विस, लाइक फिजिकल प्रोडक्ट का भी रोल है आपके सर्विस में. कोई भी सर्विस कोर्स सर्विस तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कोर्स. कई बार तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स आपको मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं. सो दैट इज द फिजिकल प्रोडक्ट ना. बट व्हाट वी टुक द सर्विस, बट विथ दैट वी आल्सो गेट द प्रोडक्ट, दैट इज फिजिकल प्रोडक्ट. तो इसको हम कहेंगे फिजिकल प्रोडक्ट. सर्विस प्रोडक्ट का मतलब है कि जब हम प्रोडक्ट को खरीदने गए, जस्ट उल्टा कर दो, प्रोडक्ट खरीदने गए और उसके साथ जो सर्विस मिल रहा है एट द टाइम, उस शोरूम में कस्टमर एग्जीक्यूटिव जो बता रहा है, पर्सनल जो बता रहा है, जो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो. 5 लाख का गाड़ी खरीदने जाओगे तो ऐसे तो नहीं खरीदोगे ना कार. उसके साथ साथ कुछ ना कुछ नॉलेज, एक्सेलरेटर के बारे में, मॉडल के बारे में. आजकल तो लोग खुद से भी पता बहुत सारी चीजें लगा लेते हैं. कोई भी डाउट होता है तो क्लियर करने के लिए ऑप्शन हमारे पास वही होते हैं ना. तो उनसे हमने जो सर्विस मिला, जो प्रोडक्ट के साथ जो हमें सर्विस मिला, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं सर्विस प्रोडक्ट. या कह सकते हैं गुड्स एंड सर्विस का जो मिक्सचर है, दैट इज सर्विस प्रोडक्ट. रेस्टोरेंट में गए,
ठीक है, रेस्टोरेंट में गए तो खाना खाने गए तो प्रोडक्ट क्या था, खाना, लेकिन साथ में वेटर ने अभी भी सर्विस दिया, वाटर दिया, ग्रीट किया, ये सब कुछ क्या हुआ, आपके सर्विस। तो इसको कहेंगे सर्विस प्रोडक्ट। क्लियर हो गया सूरज? यस मैम। यस अक्षय? मैम आप सर्विस प्रोडक्ट में बताए थे कि product like the additional services which we get with the basically product, तो उसको कहते हैं सर्विस प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विस का मिक्सचर काइंड ऑफ। ओके मैम। तो हेयर द बेसिकली ये हो गया आपका सर्विस प्रोडक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज सर्विस आपका एनवायरमेंट क्या है। तो सर्विस एनवायरमेंट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड विद द सर्विस स्केप। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के लिए इफ यू विल गो टू सी द मूवी, इफ यू आर गोइंग टू सी अ मूवी इज मोर एंजॉयबल इफ द थिएटर इज क्लीन। यानी कि एनवायरमेंट, आपको सर्विस मिल कहाँ रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई शोरूम है जो या में, ठीक है, यानी जहां से आप सर्विस ले रहे हो, सर्विस एनवायरमेंट कैसा, वहां का सर्विस स्केप कैसा, वहां का इंटीरियर कैसा, डिजाइनिंग कैसा, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी कैसी है, ये सारी चीजें एनवायरमेंट जो है जहां से आप सर्विस को डिराइव कर रहे हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है ना। आई बात समझ में? तो दिस इज द सर्विस एनवायरमेंट। इट रिफर्स टू द फिजिकल बैकड्रॉप दैट सराउंड द सर्विस, ठीक है, इसको सर्विस स्केप भी बोल सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एरोप्लेन पे चढ़े, अब एरोप्लेन पे पैर में, जैसे मैंने बताया भी था कि आपको कि नॉर्मल प्राइवेट जेट्स जो होते हैं प्राइवेट, उनमें पैर की थोड़ी सी दिक्कत होती है, जो बहुत ज्यादा टॉल होते हैं उसको थोड़ी दिक्कत होती है, बट वही एयर इंडिया में प्रॉब्लम नहीं होती है। सो अगर मान लो कि जहां हम बैठे हैं वो स्पेशियस एरिया नहीं है, या फिर अगर मान लो कॉलेज में आए और आपको बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, आइदर द टीचिंग क्वालिटी इज गुड, आइदर द ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी इज ओके, but still if you're not feeling comfortable there because the environment is not fine, because you're not feeling comfortable because of the seats, because of the interior, because of the anything, ठीक है, so in that case the environment is not best, ठीक है। अब मान लीजिए एग्जांपल में कॉलेज आए, प्रोवाइडिंग द सर्विस दैट मैटर्स अ लॉट, दैट हाउ द सर्विस इज सराउंडेड बाय व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, it is related with the cleanliness, it is related with the ambience, it is related with the atmosphere, that is related with the comfortability, related with the spacious, related with the interior, all these things comes under the service environment. Now the next one is, अब ये भी चीज आप देख लो कि सर्विस एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट, दैट्स व्हाई मतलब सर्विस एनवायरनमेंट ना मार्केटिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। यानी अगर कोई कंपनी सक्सीड करना चाहता है तो सर्विस एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है कि आपने जो सर्विस देना है वो आप कहाँ दे रहे हो सर्विस, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपने नोटिस किया होगा कि यूनिवर्सिटीज के आसपास ना बहुत सारे रेस्टोरेंट को ओपन किया जाता है, तो दिस इज व्हाई द रेस्टोरेंट्स आर ओपनिंग नियर द यूनिवर्सिटीज, द रीजन बिहाइंड इट द स्टूडेंट एरिया, है ना। So a restaurant near a university campus it is might the signal that whom they are targeting, students, clear हो गई बात। So this where you are providing the service it matters a lot, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट वन इज मैंने अभी आप लोग को एक एग्जांपल भी दिया था, बड़े एक्सट्रीम बड़े से मॉल में हो, बल्कि ऐसे कार के होते नहीं जो, लेकिन बहुत बड़े से मॉल में अगर कुछ हो तो ऑब्वियसली द एम्बियंस विल बी फाइन। एक तो वहां इतनी साफ सफाई, क्लीननेस, द पीपल लव्स हाइजीन, राइट। सो इन दैट केस इट इज नोन एज द सर्विस एनवायरनमेंट। द फिजिकल प्रोडक्ट दैट इज द सपोर्टिव प्रोडक्ट्स व्हिच इज प्रोवाइडेड विद द सर्विसेज, एडिशनल सपोर्टिव प्रोडक्ट्स, इसको बोलते हैं फिजिकल प्रोडक्ट। Service product, something which is you will get when you will get while purchasing the product, that is service product. Next one is the service environment, where you are getting the service, from where you are getting the service, the environment where the personal and the service provider and service taker they are meeting, ठीक है, वो एक मिल रहे हैं, वहां पर क्या एटमोस्फेयर है, जहां सर्विस दे रहे हो उसका क्या जगह है, क्लियर। अब एम्बियंस के लिए बहुत सारी चीजें जो आप लोगों ने फिजिकल एविडेंस में पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, बैकग्राउंड, ये लाइटनिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह, नियॉन साइंस वगैरह, ये सब आपके एम्बियंस कंडीशंस में आ जाएंगे। स्पेटियल लेआउट इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद द डिजाइनिंग, रिलेटेड विद द अरेंजमेंट्स, रिलेटेड विद कैसे आपने रखा हुआ है प्रोडक्ट्स को, सामान को वहां पर कैसे रखा है। कॉलेज है तो उसमें बेंचेस कैसे लगे हुए हैं, दीज ऑल आर द स्पेटियल लेआउट, द अरेंजमेंट्स एंड ऑल। नेक्स्ट वन इज द सर्विस डिलीवरी।
The service delivery refers at what actually happens when customer buy the service. यानी कस्टमर ने जब सर्विस को खरीदा तब उसको कैसा, मतलब बोल सकते हैं ना कि क्या हुआ फिर what, मतलब द सर्विस डिलीवरी का मतलब ये है कि क्या होगा जब, मतलब what happens जब सर्विस जो है कंज्यूमर को डिलीवर कर दिया गया, यानी कि दे दिया गया। सर्विस प्रोडक्ट मतलब यहाँ कहीं ना कहीं सर्विस डिलीवरी समथिंग विच इज रिलेटेड विद द इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जब हमने सर्विस ले लिया, ठीक है, जब सर्विस को फाइनली डिलीवर कर दिया गया, जब रेस्टोरेंट में ऑर्डर दे दिया तब खाना जब आ गया, सो दिस इज सर्विस डिलीवरी। ठीक है, यानी सर्विस प्रोडक्ट क्या हो सकता है? सर्विस प्रोडक्ट प्लानिंग योर वर्क, सर्विस डिलीवरी इज समथिंग दैट इज वर्किंग ऑन द प्लान, यानी कि अब आप प्लान पे काम, मतलब इम्प्लीमेंटेशन का काम आपने शुरू कर दिया, यानी सर्विस देना शुरू कर दिया। ठीक है, सो सर्विस डिलीवरी मतलब कि जब आप रेस्टोरेंट गए तो फाइनली आपको ऑर्डर रिसीव हो गया। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपकी थी सर्विस के कंपोनेंट्स थे ये। ठीक है, एक यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल है कंपोनेंट ऑफ सर्विस का, इंडस्ट्रियल एग्जांपल। लाइक इंडस्ट्री अगर ऑटोमोबाइल का होता है तो उसके लिए फिजिकल प्रोडक्ट क्या होगा? कार होगा। सर्विस प्रोडक्ट क्या होगा उसके लिए? टाइटल ट्रांसफर, वारंटी, मतलब टाइटल वगैरह ट्रांसफर कर दिया, वारंटी वगैरह दे दिया, तो ये सर्विस प्रोडक्ट हो गया। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लोगे तो पूरा कंसेप्ट ही क्लियर है। अगर किसी कंपोनेंट सर्विस का देखो, अगर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में ऑटो, बेसिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए उनके प्रोडक्ट क्या होंगे? कार होंगे। सर्विस प्रोडक्ट उनका क्या होगा? सर्विस प्रोडक्ट होगा वारंटी देना, ठीक है, टाइटल ट्रांसफर करना, मतलब प्रोडक्ट का टाइटल ट्रांसफर कर दिया कि भाई ये जो कार था, मान लो कि i10 था, अब ये पर्सन को ट्रांसफर हो गया, यानी कि कागज पत्तर वगैरह जो भी आप सर्विस वगैरह दे रहे हो। सर्विस एनवायरनमेंट क्या होगा? सर्विस एनवायरनमेंट होगा वो शोरूम जिसमें आप प्रोडक्ट को फाइनली सेल कर रहे हो, शोरूम हो गया सर्विस एनवायरनमेंट। और फाइनली सर्विस डिलीवरी क्या होगा? टेस्ट ड्राइव करवाना, टेस्ट ड्राइव करवाना और रिपेयर टाइम के बारे में बताना, और बेसिकली ये सारी चीजें आपकी सर्विस डिलीवरी के टाइम पे हो जाएगी, मतलब आपको सर्विस डिलीवरी की जाएगी। पार्ट्स वगैरह जो भी होगा बेटा वो रिपेयर्स में और सर्विस डिलीवरी में आ जाएगा। क्या नाम है? करेक्ट। सो यहाँ पर ये आपका था कंपोनेंट्स ऑफ द सर्विस। अब है लेवल्स ऑफ द सर्विसेज। तो लेवल्स ऑफ सर्विसेज में याद रखना कि आपके पेज नंबर फर्स्ट ही चैप्टर में होगा, सेकेंड चैप्टर मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विसेज है ना, ये पेज नंबर 23 में आपके प्रोडक्ट के कुछ लेवल्स दिए हुए हैं। कस्टमर बेनिफिट कंसेप्ट, सर्विस ऑफर, सर्विस फॉर्म्स, ये दिख रहा है ना, ये पेज नंबर 23 आपकी किताब में देख लेना, ये मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विसेज में है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में इलैबोरेट कर दूंगी। अभी जो मैंने बताया कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस और ये सर्विस प्रोडक्ट वाला, क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, और अगर कोई भी टॉपिक में डाउट होता है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना या मैसेज डाल देना, ठीक है, फिर उसको क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।